Hello everyone, welcome to this new session on verbal ability. I am Ashish and today I am going to discuss one of the very important topics of verbal ability which is reading comprehension. शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आरसी के पैसेजेस ना आते हों. स्पेशली द एग्ज़ाम्स लाइक कैट, उसमें 24 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं इस सेक्शन में दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यूजुअली दे आर टाइम कंज्यूमिंग. तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है आरसी पैसेजेस सॉल्व करने में. तो in this video I am going to share 5 rules which will make your life very easier while attempting reading comprehension passages. But before that, let me make an important announcement. We have started a free WhatsApp preparation group. उसके लिए आपको क्या करना है, you need to subscribe to this channel and then you need to go to this link and enter your details. After you enter your details, you will be added to that group. अब उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, we post daily content on that group जिसमें आपके reading links होते हैं, articles होते हैं. It tackles your vocabulary, it tackles your GK and logical reasoning and everything related to your exam, including the important exam updates. So if you want to join this free group, you can subscribe to this channel first and then you can fill your detail. Now let's go to our 5 golden rules to tackle RC passages. The first rule is that you need to create a reading schedule. उसके लिए आपको क्या करना है, first you need to identify the sources. What are the sources that you want to follow so that you can read from those sources every day. अपने WhatsApp ग्रुप पे भी हम डेली पोस्ट करते हैं, तो इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तब तो आपको सोर्सेज की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. अदरवाइज यू कैन फाइंड योर ओन सोर्सेज. इफ़ यू आर अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. I would personally recommend the newspapers like The Hindu or Indian Express. If you want to go for international publication, you can subscribe to The Economist or New York Times or whatever you like. These rules that I am talking about, they personally helped me a lot. इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट जो मुझे हेल्प किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. When I started preparing in the first mock test, I scored somewhere around 40 odd percentile in verbal ability section. However, in the actual exam, my verbal ability percentile was 99.2. So this journey from 40 odd to 99.2 was made very easier while following these 5 rules. So that's what I am sharing with you. So the first rule was that you need to create a reading schedule. For that you need to find out sources and you need to devote at least 1 hour daily for your reading. Or you can initially start with single article, then you can move and gradually increase your appetite. Why am I saying articles? Because they will solve 3 purposes जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ. Do not try to get into fictional books when it comes to reading sources. And then the second part of this rule is that you need to maintain your schedule consistently. Usually students के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही कुछ पता लगा नई चीज़, 4-5 दिन तो बड़ा जोश रहेगा और 4-5 दिन बाद वो धीरे धीरे जोश ठंडा होके चीज़ ख़त्म हो जाएगी. सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, भले ही आप टाइम कम दीजिए बट कंसिस्टेंटली रीडिंग करिए. सो दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ टैकलिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो 5 में से टोटल 3 रूल जो हैं वो प्रिपरेशन स्पेसिफिक हैं, जो पहले 3 होंगे, और बाद के 2 रूल जो होंगे वो एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक होंगे. सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड रूल. तो जो आपने रीडिंग की, जिन भी सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं, एक नोटबुक बनाइए एंड उन रीडिंग से आप नोट्स लेने शुरू कर दीजिए. अब उस नोट्स का फ़ायदा क्या होगा, उस नोट्स में आपको बनाना क्या है. सपोज़ आपने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, अब वो आर्टिकल बड़ा लंबा होता है, उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, इनफैक्ट 500-600 वर्ड्स 700 वर्ड्स तक के भी आर्टिकल होंगे. सो समराइज योर रीडिंग. इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको, समरी टाइप क्वेश्चन करने आ जाएंगे एक तो. दूसरा, आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी इन केस यू वांट टू गो बैक टू योर नोट्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. इसीलिए मैंने कहा था कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िएगा, क्योंकि जब आप समरी बनाएंगे तो आपकी जीके विल बी टेकन केयर ऑफ. So take notes, that is our second rule. Let's move on to the third rule.
इट सेज दैट मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर vocab एंड जीके. एज आई सेड, आपके 3 पर्पजेज सॉल्व हो सकते हैं इस एक एक्सरसाइज से. तो एक नोटबुक आपने बनाई अपनी रीडिंग्स की समरी लिखने के लिए, दूसरी नोटबुक बनाई है वोकेबलरी के वर्ड्स लिखने के लिए, क्योंकि वोकेबलरी इज़ ए रेगुलर फीचर इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है. कैट में इनडायरेक्टली काम आएगा और बाकी एग्जाम्स में डायरेक्टली एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं. तो जो भी आप रीडिंग करेंगे उसमें ऑब्वियसली यू विल फेस सम न्यू वर्ड्स. तो उन न्यू वर्ड्स को आपको एक अलग नोटबुक में लिखना है, वो जो आपकी वोकैब नोटबुक होगी. और सिमिलरली जीके के जो फैक्ट्स आएंगे जो कि आपको लगता है करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स लाइक जैट, एग्जाम्स लाइक टेस, एग्जाम्स लाइक सी मैट और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स, इन सब में जीके का अलग सेक्शन होता है. सो द सेम एक्टिविटी, सेम एक्सरसाइज ऑफ रीडिंग डेली विल हेल्प यू इन दिस ऑल्सो. नाउ अब हम चलते हैं अपने एग्जीक्यूशन रिलेटेड रूल्स की तरफ. पहले 3 प्रिपरेशन रिलेटेड थे, दैट विल मेक अ फाउंडेशन. 4th रूल सेज जब आप आरसी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ट्राई टू ग्लैंस थ्रू क्वेश्चंस. ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है इन पे, लेकिन आरसी पढ़ने से पहले एक नज़र मार लीजिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं. इससे हेल्प ये मिलेगी कि जब आप आरसी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लगेगा किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पार्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर देना है. सो वेन एवर अटेम्प्टिंग एन आरसी इन एन एक्चुअल एग्जाम और इन अ मॉक टेस्ट, read the questions first. And finally, the 5th rule says use the method of elimination. हमेशा आरसी वाले क्वेश्चंस में आपको सही आंसर को मार्क नहीं करना है. ऑब्वियसली सही आंसर को तो मार्क करना ही है, बट शुरू में उसको सही मार्क नहीं करना है. पहले गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. सो दैट इज हाउ वी विल ट्राई टू रीच टू द करेक्ट चॉइस. डू नॉट स्ट्रेट अवे जंप टू द राइट चॉइस. एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइसेस फर्स्ट एंड देन रीच टू द राइट चॉइस. अब उसके लिए करने का एक फ्रेमवर्क है जिसको आई कॉल बीन फ्रेमवर्क. तो मिस्टर बीन की एक अच्छी सी फोटो है इसमें. इसको बेन फ्रेमवर्क भी बोल दिया जाता है कई बार, बट आई यूज दिस इमेज सो दैट यू कैन रिमेंबर इट ईजिली. अब इसका क्या मतलब हुआ? टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, फर्स्ट एलिमिनेट द चॉइसेस विच आर टू ब्रॉड और टू नैरो. तो बी फॉर ब्रॉड, एन फॉर नैरो. फॉर एग्जाम्पल हर एक पैसेज में किसी ना किसी चीज़ की बात करी जाती है विच इज़ द स्कोप ऑफ द पैसेज. तो इफ देर इज एनी चॉइस विच इज ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द पैसेज और देर इज एनी ऑप्शन विच इज नैरोइंग डाउन द स्कोप ऑफ द पैसेज, दे आर अनलाइकली टू बी द राइट चॉइसेस इन द आंसर. तो कोई भी चॉइस जो ब्रॉड या नैरो कर दे उसको आप हटा दीजिए सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल इफ द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट लेट्स से इंडिया एंड इट्स सिचुएशन, लेट्स से इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है या इंडियन जीडीपी की बात कर रहा है, और चॉइसेस में जो ऑप्शन है वो लेट्स से दिल्ली की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज़ नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ द पैसेज. पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया एंड द ऑप्शन इज नैरोइंग डाउन टू दिल्ली विच इज अ सिटी इन इंडिया. तो ऐसे चॉइसेस आप एलिमिनेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर इसका उल्टा कर दें, अगर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड द ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया इन जनरल, दैट मीन इट हैज़ ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ द पैसेज. तो ऐसे ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो बी और एन हो गया हमारा ब्रॉडनिंग एंड नैरोइंग डाउन. ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम. तो एलिमिनेट द चॉइसेस विच कंटेन्स एक्सट्रीम वर्ड्स. अब एक्सट्रीम वर्ड्स यूजुअली उनकी पहचान क्या होती है कि वो सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, और द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दिस, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. तो सुपरलेटिव डिग्री में यूजुअली जो वर्ड्स होंगे वो एक्सट्रीम चॉइसेस होंगे. तो एक्सट्रीम चॉइसेस यूजुअली आंसर नहीं होती अनलेस द ऑथर इज ऑल्सो स्पीकिंग इन एक्सट्रीम लैंग्वेज इन द पैसेज, जो कि बहुत ही कम होता है. So on a safer side you can eliminate extreme choices unless the author himself is using extreme language. And finally you can eliminate choices which are aliens. Aliens are those which do not belong to the passage. कोई ऐसा ऑप्शन जिसकी पैसेज में बात ही नहीं करी गई और वो ऑप्शन में सीधा आ गया हो, ऐसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. So by using this Bean framework you can easily eliminate choices while attempting RC. So these tips and these rules will
help you a lot while attempting your RC, and I hope your score will improve when you start using these rules. So start making your notes, start making your 3 notebooks that I have suggested. And if you want to be a part of the WhatsApp group, go to the link and register yourself for the free preparation group. Again, we'll meet with some new topic. Till then, keep learning.